یہ وہ رات ہے کہ چاند فلک پہ نظر آ گیا. ساری ہماری ایکٹیویٹیز چینج ہو جانی چاہیے. ہماری لائف میں 180 ڈگری چینج ہونا چاہیے. 180 ڈگری. اس لیے کہ جن دنوں کے لیے جس غم کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں نا، وہ غم کا آغاز ہو گیا. ویسے سال بھر یہ غم ہے، ہر دن عاشورہ ہے، ہر زمین کربلا ہے، لیکن ایکچولی اگر ہم دیکھیں تو اسی غم کے لیے ایک دکھیاری ماں نے ہمارے لیے دعا کی تھی. اللہ کے رسول سے جب بی بی نے پوچھا تھا کہ بابا میرے بچے پہ روئے گا کون، تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ قوم کو پیدا کرے گا کہ جو تیرے حسین کا ماتم کریں گے، تمہارے حسین کا غم کریں گے. اس وقت مادر حسنین نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ پروردگار میرے بچے پہ رونے والوں کو سلامت رکھنا. دوستو تم یقین رکھو، آج جو ہم ایگزسٹ کر رہے دنیا میں، آج جو ہم بچے ہوئے، انشاءاللہ یہ جو عشرہ آئے گا اس میں نصرت امام میں بتاؤں گا کہ کیسے کیسے دور سے شیعت گزری، کیسے کیسے پیریڈ سے شیعت گزری، کیا مصیبتوں سے یہ شیعت. آج اگر آپ آرام کے ساتھ عزاداری کر رہے، ایئر کنڈیشن میں کر رہے، بڑے امام بارگاہز میں کر رہے، تو یہ مت سمجھو کہ عزاداری شروع سے ایسی ہوئی، بلکہ اس عزاداری کے لیے ماؤں نے بچوں کو قربان کیا، ماؤں نے اپنے سہاگ کو اجاڑا، خود بیوہ ہو گئیں، ویڈو ہو گئیں، بچوں کو یتیم دیکھا، لیکن اس عزاداری کو ان ماؤں نے حفاظت کی، سیکریفائس کیا. لیکن آج ہم بڑے آرام کے ساتھ ذکر حسین کر رہے. دوستو اس مہینے کا آغاز ہوا، فلک پہ چاند نظر آ گیا. اس وقت پوری دنیا میں چاند نظر آ گیا، ہندوستان، پاکستان میں، آسٹریلیا میں، ہر نیوزی لینڈ میں، ہر جگہ آج چاند رات ہے، اور لندن میں بھی آج چاند رات ہے، اور کل انشاءاللہ پہلی محرم ہوگی. تو دوستو ہم کو آج کی رات یہ چیک کرنا ہے کہ پورا ایک سال ہم نے کیا کیا. لاسٹ ایئر جب 8 ربیع الاول کو تم نے حسین کو رخصت کیا، 2 مہینے 8 دن تک مسلسل UK میں آپ نے ذکر امام کیا، زبان پر یا حسین کہتے رہے، یا علی کہتے رہے، آنکھوں سے وہ دیکھا کہ تعزیے دیکھے، کبھی مومنین کے چہرے دیکھے. 24 گھنٹے ذکر حسین تھا. 2 مہینے 8 دن آپ نے مولا حسین کا ذکر کیا، اور کانوں سے وہی سنا، کبھی نوحے سنے، کبھی ماتم سنا، کبھی مصائب سنے، کبھی فضائل سنے. 2 مہینے 8 دن مولا حسین کا ذکر کرنے کے بعد زبان پر کبھی یا علی تھا، کبھی یا حسین تھا، کبھی یا عباس تھا، کبھی یا علی اکبر تھا، کبھی لبیک یا حسین کہہ رہے تھے. لیکن اب اس کے بعد ایک سال کے بعد اب پھر محرم آ گیا. تم جسٹ یہ سوچو کہ تم نے یہ ایک سال میں کیا، کتنا چینج آیا لائف میں. کربلا کے کیا کیا پیغام کو تم نے لیا. یہ یاد رکھو کہ اگر آج 1 بلین کے اوپر مسلمان، 1 بلین کے اوپر مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے، تو وہ کس کا سیکریفائس ہے، وہ کس کی قربانی ہے. اگر آج بڑے آرام کے ساتھ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، تو یہ کس کی قربانی ہے، کس کا سیکریفائس ہے. اس غریب امام کا سیکریفائس ہے، اس حسین اور حسین کے ساتھیوں کا سیکریفائس ہے کہ جنہوں نے ایک دن میں اپنی پوری جانوں کو دے کر، مولا حسین نے اپنا پورا گھر قربان کر دیا صرف لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو باقی رکھنے کے لیے. ورنہ یہ دین نہیں بچتا. آج ہمارے پاس وہ اسلام ہوتا جو یزید کا اسلام تھا. یزید کوئی معمولی، یزید ظالم جو ہے کوئی معمولی تھوڑی سی لوگوں میں حکومت نہیں کر رہا تھا. اس کی جو حکومت تھی وہ اتنی بڑی حکومت تھی. یمن تک اسلام تھا، ایران تک اسلام تھا، سینٹرل افریقہ تک اسلام تھا، پورا مڈل ایسٹ میں مسلمان تھے، نیچے سندھ تک آگے تھے. اتنی بڑی حکومت کا وہ مالک تھا. اس وقت کے صرف 2 بگ پاورز تھے، ایک روم کی حکومت تھی اور ایک اسلام تھا. اتنی بڑی حکومت کا وہ مالک تھا، اتنی بڑی حکومت کو چلا رہا تھا، لیکن وہ ظالم نے اسلام کو ریز کر دیا تھا. تمام حلال محمدی کو اس نے حرام کر دیا. آج بڑی آسانی کے ساتھ ہم کہتے ہیں بچوں کو کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. یہ کس نے بتایا؟ یہ کس کی وجہ سے آج آپ کو پتا چل رہا کہ یہ حلال محمدی ہے اور یہ حرام ہے؟ یہ صرف حسین کی قربانی ہے. اس قربانی کے دن آ گئے تو اب یو ہیو ٹو پریپیئر ناؤ. میں بار بار ہمیشہ جملہ بولتا ہوں کہ امام حسین کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے، معصوم کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے، امام کو کام کرنے والا شیعہ چاہیے. اب یہ 2 مہینے 8 دن تم ذکر حسین، ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں، امام بارگاہ میں نہیں جا رہی، یہ ہماری مجبوری ہے، یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم لاک ڈاؤن میں، لیکن یہ شکر کرو کہ کم از کم عزاداری تو ہو رہی، کم از کم حسین کا ذکر تو ہو رہا، کم از کم حسین کا ماتم تو ہو رہا. ایک چیز اور یاد رکھو، حسین کی مجلس جگہ کی محتاج نہیں ہے. حسین کی مجلس جگہ کی محتاج نہیں ہے، لوگوں کی محتاج نہیں ہے. 100,000 کا کراؤڈ ہوگا تو مجلس حسین ہوگی نہیں، ایک آدمی میں بھی مجلس ہوتی. جگہ نہیں ہے، فرش کا انتظام نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، زمین پہ خاک پہ مجلس کرو. اگر نیاز کا انتظام نہیں کر سکتے، قبر نہیں بانٹ سکتے، کوئی بات نہیں، تم پانی پلاؤ لیکن ذکر حسین کرو. یہ حسین کا ذکر ہے کہ جس کی طرف سے آج ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں. اب ہم کو یہ چاہیے کہ ہم یہ ہیو ٹو تھنک کہ مولا حسین کا سیکرٹ. انشاءاللہ کل سے جو میرا مین عشرہ شروع ہوگا اس میں ڈیٹیل میں جاؤں گا. آج تو میں صرف ہیڈ لائن دے کے جاؤں کہ ہم کو سوچنا ہے کہ ہم ذکر حسین کے لیے ہم کو کرنا کیا ہے. چاند رات، آج کی رات دعا کرنے کی رات ہے. یہ آج کی رات، یہ وہ رات ہے دوستو کہ کل کی صبح اسلام کی ڈیسٹینی بدلی. 10 محرم کو اسلام کی تقدیر بدلی، اسلام کی ڈیسٹینی. آپ کو عجیب لگ رہا ہے یہ جملہ؟ آپ کو عجیب لگ رہا کہ اسلام کی تقدیر کیسے بدلی؟ 200%. اگر سیکریفائز امام حسین نہیں ہوتا تو اسلام ختم ہو جاتا.
ये दीन खत्म हो जाता, मेहनतें खत्म हो जाती। नबी आदम से लेके खातम तक जो मिशन था अल्लाह का मिशन क्या था? हर नबी का एक ही स्लोगन था, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। वहां से लेके यहां तक 1,24,000 अंबिया की मेहनतें जाया हो जाती, खत्म हो जाती अगर करबला का ये सेक्रीफाइस नहीं होता। इसकी इंपॉर्टेंस को समझो। मैं यूथ को बोल रहा, यू हैव टू थिंक। और तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस पैगाम को, इमाम हुसैन के इस मैसेज को तुमको दुनिया तक पहुंचाना है। दुनिया तक इस्लाम को पहुंचाना है अपने किरदार के जरिए से, अपने अखलाक के जरिए से, अपने बिहेवियर के जरिए से। तुम्हारी जबान इतनी मीठी हो जाना कि कई चीजों को छोड़ना है कि तुम्हारे जरिए लोग हुसैन तक आए। अब ये मुहर्रम शुरू हो गया, लोग तुमको पहचान रहे कैसा? हमारी आइडेंटिटी क्या है? मौला हुसैन से। हमको फख्र है इस बात का, फख्र है, वी रियली, कि हम प्राउडली कहते हैं कि हम हुसैनी हैं। और हमारी दुआ भी यही कि डे ऑफ जजमेंट में अल्लाह बोले ये हुसैनी है तो तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी। अगर अल्लाह ये बोल के पुकारे कि हुसैनी आ जाओ, और अगर हम चले गए तो ये मेरी बख्शिश का सहारा है। ये दुआ करो कि अल्लाह हमको रोज महशर भी हुसैनी कह के पुकारे। आज दुनिया में तुमको कौन क्या बोल के पहचानते? तुम जब सियाह लिबास पहन के, ब्लैक ड्रेस पहन के तुम बाहर निकलते तो तुमको हुसैनी बोलते। तो उस हुसैन के जरिए तुमको हर चीज को तुमको भी सैक्रिफाइस करना है। करबला सुन के उठना नहीं है, बल्कि करबला का उस सैक्रिफाइस को रखते। थिंक, आज की मजलिस के बाद 5 मिनट बैठ के सोचो अपने अपने घरों में कि मैंने क्या सैक्रिफाइस किया इस्लाम के, व्हाट आई हैव डन इन फॉर इस्लाम। मेरा सैक्रिफाइस क्या है? कुछ है सैक्रिफाइस? मैं ये नहीं बोल रहा कि रोड पे निकल जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा कि जाके जंग लड़ो, मैं ये नहीं बोल रहा कि तलवार तीर लेके निकलो, गन पॉइंट लेके नहीं निकलो, बल्कि करो क्या? तुम्हारे कैरेक्टर का सैक्रिफाइस। तुम दीन की ऐसा अमल करना कि जिसके लिए हुसैन ने पूरा जिहाद किया। इमाम हुसैन का जिहाद कोई एक चीज के लिए नहीं था। फिर बोल रहा हूं, सिर्फ नमाज के लिए नहीं, सिर्फ रोजे के लिए नहीं, पूरा इस्लाम, रसूल की 23 बरस की मेहनतों का जो हुक्म अल्लाह की तरफ से आया वो सारी पूरे इस्लाम का जिहाद है। यजीद से जो हुसैन ने लड़ा, कोई एक चीज के लिए नहीं लड़ा, पूरे इस्लाम के लिए लड़ा। यजीद कंप्लीट इस्लाम को रेज करना चाहता था। यजीद चाहते नहीं थे कि इस्लाम रहे, इसलिए कि उसके जो जुमले, उसके जो वर्ड्स है। जब ये लुटा हुआ काफिला करबला से यजीद के दरबार में पहुंचा तो यजीद का मैं एक हिस्ट्री का स्केच बता रहा आपको, डिटेल्स तो कल बताऊंगा इंशाल्लाह। कल से मेरी मेन टॉपिक शुरू होगी, नुसरत इमाम, हाउ टू हेल्प इमाम इन 21st सेंचुरी, हाउ टू हेल्प इमाम इन दिस पीरियड। इमाम की हेल्प कैसे करना, वो तो कल सुनो। आज तो मैं हिस्ट्री का स्केच बता रहा हूं कि करबला की जंग क्या है। दोस्तों, यजीद के पास जब ये लुटा हुआ काफिला पहुंचा, सैदानियों का काफिला पहुंचा, मैंने कितनी आसानी से ये जुमला बोल दिया। जब पहुंचा तो यजीद का दरबार भरा हुआ दरबार। यजीद की इतनी बड़ी हुकूमत, स्पेन तक यजीद की हुकूमत है, सीरिया तक यजीद की हुकूमत, सीरिया में तो था, यमन और ईरान तक, सेंट्रल अफ्रीका में कंप्लीट इस्लाम। लाखों लोगों ने यजीद के हाथ पे बैत की, मिलियंस की तादाद में मुसलमानों ने यजीद की बैत की, उस जालिम की बैत। और एक मौला हुसैन नहीं करते तो क्या होता? क्यों इसने इतना फोर्स किया? इसलिए कि ही जालिम था, ही नोस कि मिलियंस की बैत एक तरफ है, फातिमा के लाल की बैत एक तरफ है। तो जब ये लुटा, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, जब ये लुटा हुआ काफिला यजीद के दरबार में पहुंचा, एक सलवात मोहम्मद वाले जब पहुंचा दरबार में, तो उसने क्या किया? आप मेरी तरफ देखो, उसका नक्शा क्या था? पूरा दरबार भरा। उसके दरबार में एम्बेसडर्स बैठे थे, एनवॉयज बैठे थे, डिफरेंट कंट्रीज के एम्बेसडर, डिफरेंट कंट्रीज के एनवॉयज, बिजनेस लोग बैठे हुए थे, डिफरेंट कंट्रीज के डेलीगेशंस बैठे हुए थे, छोटी बड़ी जितनी उस जमाने में कंट्रीज, तो कैपिटल था। अब उस वक्त वो ये ऐलान कर रहा था कि मैं सक्सेसर हूं प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सक्सेसर हूं। आप सोचो, पूरा इस्लाम का इमेज डिफरेंट रिलीजन्स के सामने क्या था? रसूल का ये सक्सेसर, रसूल का माज़ल्लाह ये वारिस है। अब उसको पेश क्या करना है कि इस्लाम किस स्टेज पे आ गया, किस स्टेज पे इस्लाम आ गया, वो बता रहा हूं आपको, हिस्ट्री बता रहा कि कितना सैड पार्ट है इस्लाम का, डार्केस्ट पार्ट बोल सकते हैं आप। ऐसा कि कभी इस्लाम का ऐसा पार्ट नहीं होता। दरबार में यजीद एंटर होता है, पूरे डेलीगेट्स बैठे हुए, एम्बेसडर्स बैठे, एनवॉयज बैठे हुए। ये जालिम जब एंटर होता है तो उसके हाथ में ग्लास ऑफ वाइन है। मैंने कितनी आसानी से बोला और आपने आसानी से सुना। ग्लास ऑफ वाइन लेके वो दरबार में आता है। कैन यू इमेजिन? एंड ही सेज कि आई एम द सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट। मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं, व्हाट आई एम सेइंग। ये हिस्ट्री से बोल रहा हूं, हिस्ट्री बता रहा हूं आपको। इसको आप एक्सेप्ट करो या एक्सेप्ट करो, मैं शिया हिस्ट्री से नहीं बोल रहा, मैं आम मुसलमानों की हिस्ट्री। यजीद के कैरेक्टर को पहले समझो कि उसने इस्लाम को कितना डैमेज किया था, कितना डैमेज किया था। ग्लास ऑफ वाइन लेके आके बोलता है कि आई एम सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद वो आके बैठता है। अब बैठने के बाद पूरे लोगों के सामने ड्रिंक करता है, ओपन 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 ओपन। आज 1400 साल के बाद भी कोई मस्जिद का मुल्ला हाथ में ग्लास ऑफ वाइन नहीं लेता, लेकिन वो तो अपने आप को सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट बोल रहा, वारी रसूल बोल रहा, और उसके हाथ में ग्लास ऑफ वाइन। उसके बाद बैठ के पीता है सबके सामने। इमेज ऑफ इस्लाम देखो, आज जो इमेज खराब हो रहा है, इसका स्टार्ट करने वाला था वो यजीद था। मौला हुसैन का सैक्रिफाइस देखो आप। उसके बाद वो बैठ के वहां पे गैमलिंग करता है, गैमलिंग जुआ खेलता, गैमलिंग कर रहा ओपनली। उसने सारे हराम मोहम्मदी को हलाल कर दिया। आसान बात नहीं, आसान बात नहीं। शरीयत मोहम्मदी क़यामत तक शरीयत वही होगी।
इरशाद है कि हलाल मोहम्मदी कयामत तक हलाल है, हराम मोहम्मदी कयामत तक हराम है, कोई उसको हलाल नहीं कर सकता। लेकिन ये वो जालिम है यजीद कि जिसने हलाल को हराम कर दिया था, हराम को हलाल कर दिया था, गैम्बलिंग करता है। उसके बाद उसके डायलॉग देखना, उसके बाद उसके जुमले देखना, उसके बाद उसके वो वर्ड्स देखना। जब उसने मौला हुसैन के सर मुबारक को देखा, कटा हुआ सर हुसैन सैदानिया गोशे में ठहरे हुए, यजीद पूरे दरबार में एक लेक्चर देता है, तकरीर का स्पीच देता है, नशे के हालत में, फुली ड्रंक। और मैं बार बार ये जुमला बोल रहा कि सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट माज़अल्लाह ये बोलता है। उसके बाद एक लेक्चर देता है, तकरीर करता है, क्या कहता है? अब सुनना गौर से, एक एक जुमला सुनना गौर से, एक एक वर्ड गौर से सुनना कि क्या इस्लाम का इमेज हो गया था कि इस्लाम मौला हुसैन की ये जो कुर्बानी है कोई मामूली चीज नहीं है। दीन स्टेज पे आ गया था, इस्लाम स्टेज पे आ गया था। अगर उस वक्त मेरा मौला हुसैन आगे बढ़ के नहीं रोकता, यजीद को नहीं टोकता, यजीद के खिलाफ जंग नहीं करता, तो आज वो इस्लाम रहता जो यजीद पेश कर रहा था। वो दरबार में क्या कहता है? ओपनली कहता है, सरे मौला हुसैन को देख जालिम कहता है कि आज मेरे बदर के फर्स्ट इस्लामिक बैटल बदर, सेकंड इस्लामिक बैटल ओहद, कहता है आज बदर के ओहद के मेरी फैमिली मेंबर्स की रूह कितनी खुश हुई होगी कि मैंने बनी हाशिम से कैसे उनका बदला ले लिया। कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन? बदर में कौन आया था? फर्स्ट इस्लामिक बैटल में कौन आया था? अबू जहल, अबू लहब, खालिद, वलीद, अबू सुफियान, ये लोग आए थे। मरा कौन था? वासिल जहन्नम कौन था? अबू जहल। किसके खिलाफ आए थे? इमाम अली के खिलाफ आए थे? नहीं, इस्लाम के खिलाफ आए, अल्लाह के खिलाफ, रसूल के खिलाफ। किसकी जान लेना चाहते थे वो लोग? अल्लाह के रसूल की, प्रॉफिट। और यजीद आज किसको याद कर रहा? किसको याद कर रहा? वो काफिरीन को, वो मुशरिकीन को, जिन्होंने 13 इयर्स अल्लाह के रसूल को इतना हार्ड टाइम दिया, इतना हार्ड टाइम दिया कि रसूल का जुमला है, या आप इस बिग्रामी का जुमला नहीं, अल्लाह के रसूल का जुमला है कि नबी आदम से लेके ईसा नबी तक हर नबी की उम्मत को उनकी उम्मत वालों ने सताया, तंग किया, अजियत दी। इन सबको अगर एक तरफ करो तो मेरी उम्मत ने सबसे ज्यादा दी। कौन देना थे? यजीद के फैमिली मेंबर्स, यजीद का ग्रैंडफादर, यजीद का ग्रैंडफादर, यजीद का ग्रैंडफादर, यजीद। तारीख से नाम पूछो कौन था? यजीद की ग्रैंडमदर जनाब हमजा की खातिला कौन है? मैसेज डॉक्यूमेंट्री देखो जाके, यूट्यूब पे मैसेज है, वो डॉक्यूमेंट्री देखो, यू विल नो द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, यू विल नो द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। मक्के की हिस्ट्री मालूम होगी, मदीने की हिस्ट्री मालूम होगी, वो डॉक्यूमेंट्री आज भी मौजूद है। उसके बाद कहता है कि कितनी आज उनकी रूहें खुश हुई होंगी कि मैंने उनसे कैसे बदला ले लिया, रिवेंज ले लिया। आप इमेजिन करो काफिर और मुशरिकीन को जो रसूल के खिलाफ आए थे, जो रसूल के जान के दुश्मन थे, खून के प्यासे थे, हमारे रसूल को जो कत्ल करना चाहते थे, उसको याद कर रहा था ओपनली, ओपनली तारीख में सारी चीजें मौजूद। उसके बाद वो क्या कहता है कि कैसे मैंने बनी हाशिम से उनका बदला ले लिया। उसके बाद का जुमला सुनो, यजीद कहता है, यजीद के जुमले किसी और के जुमले नहीं, सारे उसके ये वर्ड्स रिकॉर्डेड है हिस्ट्री के अंदर। उसके बाद कहता है कि रसूल पर, जिसका सक्सेसर बोल रहा अपने आप को, प्रॉफिट का सक्सेसर बोल रहा, कहता है रसूल पर ना वही नाजिल हुई ना फरिश्ते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कैसी बड़ी तोहमत, कैसा बड़ा एलिगेशन। कहता है कि ना रसूल पे वही नाजिल हुई ना फरिश्ते। उसके बाद कहता है ये ढोंग था बनी हाशिम का हुकूमत को लेने। ढोंग जिसको इंग्लिश में फ्रॉड बोलेंगे, फ्रॉड बोलेंगे। सोचो किस पे ये बोल रहा, रसूल को बोल रहा था। ये इस्लाम था। मैं अभी इसको कंक्लूड करूंगा, मैं हिस्ट्री बता रहा आज चांदार के मजलिस लंदन से अहले बैत चैनल के ऊपर कि क्या हाशिर हो गया था इस्लाम का, क्या हाशिर हो गया था इस्लाम का। कहता है कि रसूल पे वही नाजिल हुई ना फरिश्ते। ये ढोंग था, ये फ्रॉड था हाशिमी का। उसके बाद आप सोचो ना जिब्राइल का आना, ना जिब्राइल का जाना, ना कुरान किताब होली बुक एक्सेप्ट करा, ये सारी बीमारियां, ये सारे एलिगेशंस लगाकर और खुला खुला रसूल के ऊपर तहमत लगा, खुला खुला अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी कर रहा। कोई बोलने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। Nobody is there to say, Yazid, what are you talking? What are you talking? किसी के पास करेज नहीं था। मिलियंस की तादाद में कलेमा पढ़ रहे थे, मिलियंस की तादाद में कलेमा पढ़ रहे थे। And nobody is there to tell Yazid, what are you doing? What are you saying? तू उन्हीं का तो कलेमा पढ़ा, तू उन्हीं का तो सक्सेसर है, और उसके बाद तू ये बोलता है। कोई बोलने वाला है। और सुनेंगे, और सुनेंगे। नशे के आलम ही was drunk, नशे के आलम में फजर की 2 रकत नमाज की जगह 4 रकत पढ़ा के बोलता और 2 रकत पढ़ा लूं। Can you imagine? 1400 साल के बाद मुसलमान ये काम नहीं कर सकता। और एक बात बोलूं, मिंबर का तकाजा है, बहुत एहतियात से बोल रहा, हाथ रख के बोल रहा। रात भर एक कनीज के साथ रखता है और उस औरत को लिबास चेंज करवा के मस्जिद में भेजता है, दमिश्क की सीरियन मॉस्क में, जामा मस्जिद में, और भेज के ये कहता है कि जाके तू नमाज को लीड कर। ये इस्लाम था, ये मुसलमानों, ये इस्लाम था। मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं। I'm responsible of my words, what I'm saying, what I'm saying. Go and see the history, go and see that. Don't tell me, don't ask me, go and see that. ये यजीद है। कोई उस वक्त एक नहीं बोल सकता। आज 1400 years के बाद
कोई मुसलमान औरत के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, औरत को नहीं बोलता कि लीड करो नमाज। जो शरीयत मोहम्मदी है वो शरीयत मोहम्मदी है। शरीयत मोहम्मदी में औरत नमाज को लीड नहीं कर सकती, जमात नहीं कर सकती। जो रसूल ने कह दिया वो कह दिया, अल्लाह ने जो कहा वो कहा। शरीयत किसी की नहीं है, शरीयत मोहम्मदी है, अल्लाह की शरीयत, अल्लाह के हुक्म से ये शरीयत बनी। हम अपनी मर्जी से इस्लाम में कोई तब्दीली भी नहीं ला सकते। आप समझ रहे मेरी बात? रात भर कनीज के साथ एक कनीज को लेके जाके नमाज को लीड कर, नोबडी इज देयर टू से कि व्हाट आर यू डूइंग, दिस इज हराम। 1400 साल के बाद भी कोई पूरी दुनिया में किसी मॉस्क में कोई औरत लीड नहीं करती नमाज को। आज मुसलमानों को इतना ख्याल है, ये ख्याल आया किसे? ये सैक्रोसंक्ट की किसकी वजह से? मौला हुसैन की वजह से। अब उस हुसैन के जिक्र को प्रोपोगेट करो, ये पहली जिम्मेदारी हमारी। पहली जिम्मेदारी है, ये मत समझो कि यार मैं क्या प्रोपोगेट करूं। हर शिया लड़का की, लड़की की, औरत की मत। हर घर में लंदन में इमाम बारगाह बंद है, लेकिन तुमने अपने घरों में अलम स्टार्ट किए। हर घर में स्टार्ट करो, हर घर में मजलिस करो, बच्चों के साथ करो। ऐसा नहीं कि 1 साल का गैप हो जाएगा तुम इमाम बारगाह नहीं जाते तो तुम रिलैक्स हो, नहीं। ये जिम्मेदारी है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, याद रखो। ये मुहर्रम की मजलिसों की बहुत अच्छा मौका मिला। हर माँ को, औरत को बोला कि जो बैठ के सुन रहे, तुम्हारे घर में जैसे मैंने अभी कहा कि 180 डिग्री चेंज हो जाए, तुम्हारी लाइफ में 180 डिग्री चेंज आना। कल पहली मुहर्रम चांद हो गया तो आज रात से तुम घर में सियापोश हो जाओ। आज रात से घर में आजादारी करो, हर घर में आजादारी करो, हर घर में नहा पढ़ो, हर घर में मातम करो। तुम अपने घरों में, ये जरूरी नहीं, मैंने जैसे कहा कि आजादारी किसी मजबे की मोहताज नहीं है, जगह की मोहताज नहीं है। अगर आपकी फैमिली है, मियाँ बीवी बच्चे, तो तुम घर में आजादारी। बच्चों के ड्रेसेस को बदलो, बच्चों के लिबास को काला पिनाओ, और घर का में टीवीज को बंद करो। अगर बच्चे पूछते कि व्हाई वी आर नॉट वाचिंग, तो बोलो उनको कि दिस मॉर्निंग डेज, ये कोई फेस्टिविटी के दिन नहीं है, ये गम के दिन है। जैसे तुम्हारा बाप मर जाए या माँ मर जाए तो वो तुम उन दिनों में टीवी चैनल्स नहीं खोलते, भैया न्यूज के लिए खोलना है तो खोल लो, लेकिन एक चीज याद रखो, कोशिश ये करो कि ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट 10 डेज आजादारी। हमारी आजादारी 2 महीने 8 दिन तक चलेगी, 2 मंथ्स 8 डेज तक हमको आजादारी करना है। यही आजादारी है, याद रखो, जो तुम्हारी बका का साया है। यही वो आजादारी है, अल्लाहुम्मा अर्ज़क़नी शफ़ाअत अल हुसैन अलैहिस्सलाम यौमल वरूद, वो यही है। अगर तुम आजादारी करोगे, तुम गम करोगे, हुसैन का मातम करोगे, यही चीज तुम्हारे बच्चे सीखेंगे। बच्चे नहीं सीख रहे, तुम्हें इन्वेस्टमेंट कर रहे कि बैंक में अगर thousands and thousands and thousands and thousand pounds है ना, वो सब यही रह जाएंगे। लेकिन अगर तुमने आज बच्चों को आजादारी हुसैन सिखा दिया तो आज तुम मर भी जाओगे, ये लोग जब तक आजादारी करते रहेंगे तुम्हारे बैंक का अकाउंट खुला रहेगा। आज तुमको आबिद दुर्रानी की बात समझ में नहीं आ रही, आज आप ये नहीं समझ रहे मैं जो बोल रहा हूं। आज मेरे पास पैसा है, आज मेरे पास ताकत है, आज मेरे पास जॉब है, आज मेरे पास बिजनेस है, आई एम फाइन नाउ। लेकिन याद रखो, ये कब तक रहेगा? कभी तो जाओगे, कभी तो मरोगे। लाइफ का कोई भरोसा है? ये वो गुड डीड्स है जो तुमको लेके तुम्हारे सारे गुड डीड्स को कबूल कराएंगे अल्लाह की बारगाह में। वफादारी है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ये याद रखो, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तुमको आजादारी उसी शान से करना है। लॉकडाउन है, ठीक है, जो गवर्नमेंट बोलते है उस पर अमल करो, जो आपके डॉक्टर्स बोलते हैं उस पर एडवाइस करते हैं उस पर अमल करो, जो तुम्हारा मर्जा बोलता है उसी पे अमल करो। लेकिन घर में नहा पड़ो, क्या प्रॉब्लम है? मियां बीवी है, आप अकेले घर में बैचलर हो, इतने नोहे खाने, और फिर के मातम करो, मजलिस करो। कल मैं एक मजलिस के आपको बताऊंगा कि क्या बरकत है मजलिस, ये जरूरी है। ये ऐसा नहीं कि मुहर्रम अच्छा लॉकडाउन है, इमाम बारगाह जाना नहीं पड़ा, घर में आजादारी मत करो, कोई एक मजलिस सुन लो बैठ जाओ, नहीं। घर के माहौल को ऐसी बनाओ कि ये वो चीज है कि बच्चों को मालूम होना चाहिए कि आजादारी हुसैन मुहर्रम आ गया। तुम्हारे घर में अगर कोई एंटर हो, लंदन में कोई घर में तुम्हारे एंटर हो, तो उसको पता चले कि इनके घर में मॉर्निंग है। जैसे अगर कोई मर जाता है तो कोई घर में आता है तो उसको पता चल जाता है कि ये इनके घर में कोई गम हुआ है। हमारे गम क्या? रसूल का घर उजड़ गया। हमारा गम क्या? फातिमा का घर उजड़ गया। तब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप ये जिक्र हुसैन को क्या करना, तो ये कोशिश करो कि बच्चों को बताओ, कोशिश करो हर मजलिस को स्पॉन्सर करो, हर मजलिस को। अब मैंने सुना कि सिर्फ 72 पाउंड मांग रहे हुसैन के बच्चों के नाम पे, करबला वालों के नाम। अब ये मत बोले यार व्हाई शुड स्पॉन्सर। तुम्हारी हो सकता है ये एक मुहर्रम की मजलिस तुम्हारी बख्शिश का सहारा बन जाए। तुम क्या समझ रहे यार, क्या समझ रहे? ये जिक्र हुसैन कोई मामूली जिक्र नहीं, अय्याम अज़म के मजलिस है। मेरी ख्वाहिश है जो मेरी मजलिस सुन रहा, कल पहली मुहर्रम की मजलिस, पहली मुहर्रम की मजलिस में आगे बढ़ो। तुम देखो, मैं एक बात बोलूं कि तुम्हारे रिस्क में प्रॉब्लम्स है, लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है, लाइफ में हर्डल्स है, कितने फोन्स, कितने व्हाट्सएप्स आते, ये मैरिड लाइफ का प्रॉब्लम, ये बच्चे का प्रॉब्लम, एडमिशन का प्रॉब्लम, जॉब का प्रॉब्लम, बिजनेस का प्रॉब्लम, चल रहा हुसैन के नाम पे आगे बढ़ो। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मौला ने बहुत दिया है, मौला हुसैन का सदका है, मेरी बीवी के जूतियों का सदका है। इमाम ज़माना ने अपने जेब के गम में बहुत दे दिया, उनका शुक्रगुजार हूं जिसका मैं काबिल नहीं, हुसैन ने इतना दिया। लेकिन आपका मजलिस हुसैन दोस्तों में जिंदगी में वल्लाह वल्लाह कह रहा, इससे बड़ी कोई चीज नहीं, इससे बड़ी कोई चीज नहीं। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, मैं आपके अच्छे के लिए बोल रहा। मैं चाहता जो अब ये पहली दफा आया हूं अहले बैत चले अय्याम अज़म अशरे अव्वल, तो आप मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारी अच्छे के लिए बोला कि तुम 1 साल का प्रोटेक्शन करना चाहते हो सकता है कल तुम्हारे घर में कोई मुसीबत आने वाली है, हो सकता है तुम्हारी गाड़ी को एक्सीडेंट होने वाला है, हो सकता है तुम्हारे बच्चे बीमार होने वाले, हो सकता है तुम्हारा जॉब जाने वाली है, ले ऑफ हो जाओगे। लेकिन अगर हुसैन के नाम पे दोगे तो कम से कम बीवी तो बोलेगी कि मेरे बच्चे का इसने जिक्र किया,
इस लॉकडाउन में इसने मजलिसों को स्पॉन्सर किया, हर आदमी आगे बढ़े। पहली मुहर्रम है कल, पहली मुहर्रम है। तुम कितने लकी होगे, आप सुनो तो मेरा एक एक जुमला गौर से सुनो, तुम कितने लकी होगे, मैं कितना लकी हूं कि मुहर्रम का साल का पहला दिन, साल का पहला दिन मैं हुसैन की मजलिस करूं, उससे तुम्हारे साल का आगाज करो। what I'm saying, just try to understand कि तुमने अगर पहली मुहर्रम को अपनी मजलिस को करवा दिया तो tomorrow you can say to your imam कि मौला साल की जो पहली मजलिस थी, दूसरी मजलिस थी, तीसरी मजलिस थी, उसको मैंने करवा, मैं उसमें शरीक हूं। 72 pounds is what is 72 pounds? कौन सा बड़ा लाखों डॉलर तुमको देना पड़ा। शुक्र करो कि एक चीज याद, हुसैन के खजाने में कमी नहीं, ये याद रखो, जो तुम रोटी तोड़े ना वो इमाम हुसैन के लिए तोड़े, उनके सदक़े में तोड़े। जो मैं बीमारियों से बचा हुआ हूं ना, मैं मौला हुसैन का सदका है। अगर जो कुछ भी हो सकता, लेकिन एक दफा अगर बीबी फातिमा बोलते इसने मेरे बच्चे की मजलिस की, तुम्हारी बख्शिश का साथ, कितने वाकयात है यार, कितने वाकयात कि न्याज में शरीक हुआ, न्याज में शरीक हुआ, न्याज हुसैन में शरीक हुआ तो उसकी जिंदगी बदल गई। कल की मजलिस मैं चाहता कि हर आदमी स्पॉन्सर करे, ज्यादा से ज्यादा लोग स्पॉन्सरशिप के लिए जाए। बस मेरा वक्त तेजी से हो जाए। ये मसाइब की मजलिस, चांदात की मजलिस, चांदात के बारे में भी हुआ। शब जुमा, लंदन में भी शब जुमा, इंडिया में भी शब, आपकी शब जुमा शुरू हो गई, मगरिब का वक्त आ गया। कोशिश करो कि ये रात, पहली रात, मुहर्रम की पहली शब जुमा, साल की पहली शब, फर्स्ट थर्सडे, ये रात तुम अपनी इस रात का आगाज, शब जुमा का आगाज ज़ियारत इमाम हुसैन से करना। लेकिन आज की ज़ियारत का तरीका थोड़ा बदल देता है। प्लीज गौर से सुनो, मैं चाहता कि मैं पहली दफा आया हूं आपके पास मुहर्रम, तो मैं चाहता कि रोज मैं इंशाल्लाह दुआएं बताऊंगा अय्याम नज़ार कि क्या करना है, क्या करना है। मैं चाहता कि जब आए हैं तो हर आदमी की हाजत पूरी हो। तुम लोग सब बैठ के सुन रहे कि तुम्हारी दुआ, सबके दिलों में दुआएं। कोई बीमार है उसको सेहत चाहिए, कोई परेशान हाल है उसकी परेशानी, किसी की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं, हर्डल्स, उसकी दूरी, किसी की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, किसी को बच्चे नहीं है, 1000 प्रॉब्लम्स, 1000 प्रॉब्लम। और एक चीज और याद, tomorrow never comes, tomorrow never comes। शो करना है अभी करो, स्पॉन्सर करना है जल्दी मजलिस को अभी फोन करो, लाइन लगा दो, लाइन लगा दो, टेलीफोन नहीं मिला ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो। और ये बोलो कि हुसैन दुआ करो कि मौला हुसैन ले लो आप मेरे पैसों को, मेरे 72 पाउंड को आप एक्सेप्ट करो। कोई 2 करे, 3 करे, 4 करे, 5 करे, फिर देखो एक चीज याद रखो, छठे इमाम का जुमला है, आप गुजरान का जुमला नहीं, छठे इमाम बोलते कि अगर कोई अपने माँ बाप का कफील बन जाता तो अल्लाह इसके डिटेल्स इंशाल्लाह कभी मजालिस में आएंगी, 70 गुना देते बोला, हज को गया तो 70 गुना। उसके बाद कहा जो मेरे जज की आजादी में खर्च करेगा उसको मैं गैर हिसाब रखूंगा। गैर हिसाब वो इमाम होना चाहिए जिसको दुश्मन ने सदेखा। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट कि आप पहली मजलिस को, वो कौन से नसीब होंगे कि जिन हुसैन की पहली साल की पहली मजलिस को उन्होंने पहुंचा दिया। अब आगे बढ़े मोदी, और आज की रात जब ज़ियारत पढ़ना दोस्तों, बस मैं आखिरी से 45 ईयर की मजलिस ऑलरेडी हो गई। जब तुम ज़ियारत पढ़ना, ज़ियारत इमाम से आज थर्सडे अपने मरहूमीन की तरफ से पढ़ना, जो लास्ट ईयर तक पूरे अय्याम एज़ा में दौरे एज़ा में थे,